Ron? और आप सभी का स्वागत है। Okay, I think it was muted. Now only they can hear. Okay, sorry. Good morning, everyone. Welcome to class. और एक बार फिर सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। So we are going to continue studying the 9 guideposts. और जो 9 चिन्ह पद चिन्ह हम देख रहे थे उनको हम आगे अध्ययन करेंगे। We were studying the 6th one. और हम छठा पढ़ रहे हैं। What is the 6th one? और छठा क्या है? Recognize the circumstances. So God orchestrates circumstances in our lives. और देखिए, हमें परिस्थितियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर किसी परिस्थिति को हमारे जीवन के अंदर में आयोजित करता है, So these circumstances can be anything that God can bring people. He can open up new avenues, things, places in our lives. और कोई भी चीज हो सकती है, चाहे लोग हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, कार्य हो सकता है, जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में लेकर आता है। But we studied last week that not every circumstance that God brings in our lives is from Him. और हम ये इस बात को नहीं कह सकते कि हर एक परिस्थिति और वातावरण जो हमारे जीवन के अंदर में निर्मित होता है वो परमेश्वर की ओर से ही है। And not everything is going to be easy or pleasant. और दूसरी बात ये है कि हर एक परिस्थिति आसान और आरामदायक नहीं होगी। But some of the circumstances that God brings in our lives is to correct us, like we studied Hebrews chapter 12. और कई सारी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है जो कि हमारे सुधार के लिए होती है, जैसे कि इब्रानी 12 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था। On page number 20 in the English books. और 20 नंबर के पेज में। And sometimes we can't say that all circumstances are from God, because some of them are also because of wrong choices that we make. और कई बार कई सारी गलत चुनाव हम कर लेते हैं तो वो परिस्थितियां हमारे लिए आरामदायक नहीं होंगी। So the wrong choices that we make can also result in circumstances which not is God ordained or brought by God, but it's because of our own choices. और कई बार जो गलत चुनाव हम लेते हैं उन चुनावों के कारण कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर में उत्पन्न होती हैं। वो जो परिस्थितियां हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन हमारे गलत चुनाव लेने के कारण हमारे जीवन के अंदर में उत्पन्न होती हैं। So that's where we stopped last week on bottom of page number 21. और देखिए 21 नंबर के पेज पर हमने अंत किया था पिछली क्लास में। So we'll continue from there. Before that, we'll just pause for a word of prayer. Can somebody lead us in prayer, please? और वहीं से हम आरंभ करेंगे, लेकिन आरंभ करने से पहले कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। Online students, can anyone unmute your mics and lead us in prayer, please? Yeah, sure, ma'am. Heavenly Father, Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you for this wonderful morning. Thank you for this wonderful opportunity. Not so many people have this wonderful opportunity to listen to the Word of God, to study the Word of God, Lord Jesus. Thank you, Lord. Please help us to understand your words, Lord Jesus. We commit the entire class unto your hand, Lord Jesus. Please, Lord, teach us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lenin. Thank you. Here in bottom of page number 21, we see that not every circumstance that we face has been designed by God. और हर एक परिस्थिति जो हम सामना करते हैं जरूर नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर में रची गई हो। Some of them can be a result of our own choices or actions. और कई जो है हमारे चुनाव और हमारे कामों की वजह से हमारे जीवन के अंदर में उत्पन्न होती हैं। Some can be as a result of other people's actions in our own lives. और कई बार दूसरे लोगों के कामों के कारण हमारे जीवन के अंदर में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। Or sometimes it can be arranged by the devil himself. और या तो फिर कई बार शैतान ने ही हमारे जीवन के अंदर में किसी परिस्थिति को खड़ा किया हो। So we need to be very careful to discern the circumstances. और हमें बड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि हम उस परिस्थिति को पहचान सकें। So suppose somebody says, hey, come, I'm going to start a business, join me. और कोई आकर आपसे कहता है कि मैं एक नया व्यापार चालू कर रहा हूं, मेरे साथ में जुड़ जाओ। And you're thinking, okay, I don't know what is God's purpose for my life, and I'm studying this book, Fulfilling God's Purpose. I think this is God opening the doors for me. और हम कहते हैं कि अरे मुझे नहीं मालूम मेरे
जीवन के अंदर में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में कैसे पूरा करना है, तो शायद परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है, चलो इसी में चले जाता हूँ। And then you'll get into that and mess up and say, God, what are you doing? और आप उसमें घुस जाते हैं, चले जाते हैं और सब बर्बाद करके कहते हैं परमेश्वर आप कर क्या रहे हैं। Then God will tell you, hey, this is not the door I opened. और परमेश्वर कहेगा ये वो दरवाजा नहीं है जो मैंने तेरे लिए खोला है, It was your own choice, your own action. और ये तो तेरा चुनाव है, तेरे काम है जो तूने चुना है। So, or it can just be the enemy just bringing in you, that thing in your life to divert you from God's real plan and purpose for your life. और हो सकता है कि शैतान जो है परमेश्वर की मुख्य योजना और उद्देश्य से आपके ध्यान को भटकाने के लिए आप आता है और उसमें आपको घुसा देता है। But we need to discern. और लेकिन हमें परखने की आवश्यकता है। That's why we studied. We need to constantly meditate on God's word so that we can have our senses trained to know the good, pleasing, and perfect will of God. और इसीलिए हमने कहा था कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने मन को तैयार कर सके, परमेश्वर की भली बाती हुई इच्छा को अपने जीवन के लिए समझ सके, जान सके। In addition to God orchestrating situations, Satan can also bring circumstances to oppose God's plans for our और lives. जब परमेश्वर किसी परिस्थिति को हमारे जीवन के अंदर में नियोजित करता है, शैतान भी वहीं पर परमेश्वर की योजना और योजना के विरोध में एक परिस्थिति को खड़ा करता है ताकि हम परमेश्वर की योजना से वंचित हो जाएं। So he can bring people or situations to harm, hinder, or distract us from our calling. और शैतान हमारे जीवन के अंदर में लोगों को लेकर आ सकता है, परिस्थितियों को खड़ा कर सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें रुकावट डाले या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने से ध्यान भटका दे। So the first week when you had the orientation week, और सबसे पहला हफ्ता जो आपका ओरिएंटेशन का हफ्ता था, the in-person students, in the afternoon sessions, they were studying about God's general, all the mighty men and women of God raised up to bring revival. और देखिए जो लोग यहाँ पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी का समय था दोपहर के समय पर, आप परमेश्वर के दास दासियों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े कार्यों को किया, उनके बारे में सीखने और जानने का मौका मिला था। And remember I shared about Maria Woodworth. और आप में से कितनों को याद होगा कि मैंने मरिया वुडवर्थ के बारे में बताया था। God used her mightily as a healing revivalist. और परमेश्वर ने चंगाई सभाओं को आयोजित करने के द्वारा उस महिला का बहुत इस्तेमाल किया। And we see that God called her at a very young age. और हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर ने उसे जवान उम्र में ही सेवा के लिए बुलाया था। And she was so zealous to serve God. और उसके परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत जलन भी रखती थी। But she was distracted by her own personal choice. और लेकिन अपने व्यक्तिगत चुनाव के कारण ही उसका ध्यान भटक गया। She was distracted by her own personal choice, which delayed her calling because she fell in love with a soldier, got married, had 8 children, and distracted from her calling. और देखिए उसके खुद के चुनाव के कारण जो उसने अपने जीवन में लिए, वो प्रेम में गिर पड़ी, एक सैनिक से विवाह कर लिया, 8 बच्चे पैदा हो गए और उसने अपनी बुलाहट को देर कर दी और उससे वो भटक गई। And remember, 7 of her children died, and it really brought her to a place where, she cried out to God and she realized that she had gone away from her calling. और आपको याद होगा उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो दुख के कारण परमेश्वर को पुकारती है, और जब पुकारती है तब उसे याद आता है उसके जीवन के अंदर में परमेश्वर की बुलाहट है। So we must discern whether a situation comes from God. If it's from God, we just have to obey and respond faithfully. और हमें जांचने की आवश्यकता है कि ये परिस्थिति जो है वो कहां से है, क्या परमेश्वर की ओर से है? यदि परमेश्वर की ओर से है तो आज्ञा माने, विश्वास योग्यता के साथ में उसको प्रति उत्तर दें। If it's our own actions, then we have to repent, correct ourselves, and realign ourselves to God's will, like Maria Woodworth did. और यदि हमारे खुद के कामों की वजह से परिस्थितियां खड़ी हुई है, तब हमें मन फिराने की आवश्यकता है, अपने आप को सही करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को परमेश्वर की इच्छा में जोड़ने की आवश्यकता है। Or if it's the enemy, that God has given us the weapons for our warfare,
He has given us spiritual authority. We need to exercise it, resist it, and overcome it. और यदि शत्रु की ओर से है तो परमेश्वर के दिए गए हथियार हमारा आत्मिक अधिकार से हमें शत्रु का सामना करना है, उसको भगाना है। But even if Satan puts in a lot of difficulties and hardships like he did for Paul, और यदि शैतान फिर भी हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलों को लाता है, समस्याओं को लाता है, जैसा कि उसने पौलुस के साथ भी किया, and Paul asked God to remove the thorn in his flesh. और पौलुस प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरी देह में जो कांटा चुभा है आप उसे दूर कर दें। And we know that God allowed that hindrance and those persecution and difficulties in Paul's life. और हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के अंदर में वो सताव, मुश्किलें, दिक्कतों को अनुमति दिया कि उसके जीवन में ये सब हो। But we see that God countered it by his grace. He said, "My grace is sufficient for you." और लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उसे संभाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। So God can order circumstances in our life which will bring us into his calling, but we need to discern and be very careful. और देखिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में कई परिस्थितियों को खड़ा करेगा अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, लेकिन हमें बड़ी सावधानी के साथ में उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। I like what Proverbs chapter 4 verse 26 says on page number 22. और देखिए 22 नंबर पेज पे अगर आप देखेंगे तो नीति वचन उसका 4:26 बहुत अच्छी रीति से लिखता है। Solomon says, ponder the path of your feet. और देखिए हिंदी में 23 नंबर के पेज पर लिखा हुआ है, सुलेमान इस प्रकार कहता है, अपने पांव धरने के मार्ग का समथर कर। That means we need to think about what we're doing, where we're going, the steps and the choices that we make. और देखिए जो हम चुनाव कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपने रास्ते के बारे में विचार करें, सोचें कि हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। Then our ways will be established. और तब हमारे मार्ग जो है वो ठीक रहेंगे, स्थापित हो जाएंगे। So that is the 6th guidepost. और ये छठा चरण था। Now we'll move on to the 7th. और अब हम जो है 7वें बिंदु पर चलेंगे। Is there any questions about the 6th guidepost? और क्या किसी के पास कोई सवाल है छठे बिंदु के ऊपर में? No questions? कोई सवाल नहीं है। Okay, we'll move on to the 7th guidepost. और 7वें हम चिन्ह पे चलने वाले हैं। What is the 7th one? और 7वां क्या है? Recognize godly counsel and wisdom. ईश्वरीय परामर्श और बुद्धिमानी को पहचानें। What is counsel? और सलाह क्या होती है? Advice, और सलाह, परामर्श, instruction, निर्देश, guidance, अगुवाई sharing your knowledge with someone else. और Yes. दूसरे के साथ जो आपने सीखा या ज्ञान है बांटना। So counsel is basically not command. और देखिए अगर हम परामर्श देखें तो वो कोई आज्ञा नहीं है। When somebody gives you a counsel, they're not giving you the 11th commandment. और जब कोई आपको सलाह देता है तो 11वीं आज्ञा आपको नहीं सिखाता है। Counsel is always voluntary guidance. और जो सलाह है वो हमेशा स्वयं होते हैं, स्वयं सेवक के रूप में होता है। It is intended to help you make wise decisions. और वो एक अपने आप स्वयं इस बात का निर्णय करते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे कि बुद्धिमानी के साथ आप निर्णय कर सकें। So God can use godly counsel to, establish you in your plans and your purposes. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में जो उसके उद्देश्य और योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए ईश्वरीय परामर्श का इस्तेमाल कर सकता है। Now, when you say godly counsel, is basically we are talking about advice given by a man or woman who has a deep, tested and rooted relationship with God. और यदि हम बात करें ईश्वरीय परामर्श की, एक ऐसा व्यक्ति या स्त्री जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ में उनका रिश्ता बहुत गहरा है, भरोसेदायक है, परखा हुआ है और प्रभु के साथ में उनका मजबूत रिश्ता है। So when you're saying godly counsel, you're not just saying go to anyone and everyone and ask them counsel. No, only those who
have a deep tested and rooted relationship with God. और जब हम बात करते हैं कि ईश्वरीय परामर्श की हमें आवश्यकता है, तो हर किसी के पास में जाकर हमें परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जो प्रभु के रिश्ते में गहराई में हो और उसका परखा हुआ हो और वो जड़ पकड़े हो परमेश्वर के वचन में। You need to ask godly counsel from people whose knowledge is based on their word of God. और आपको उन लोगों से परमेश्वर की सलाह या परामर्श मांगना है जिनका ज्ञान परमेश्वर के वचन के ज्ञान के आधार पर हो, And they live their life and they're walking with God based on the word of God. और वो अपने जीवन को इस रीति से चलाएं और जिए जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। Now there is a clear example of godly counsel that is found in 1 Corinthians chapter 7 verses 10 to 12. और देखिए परमेश्वर की सलाह का एक अच्छा उदाहरण जो है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 से लेकर हम 12 पद तक पाते हैं And 25 to verse 28. और 25 से लेकर 28 वचन में पाते हैं। It's on bottom of page number 22. और यदि आप हिंदी में देखेंगे तो 24 नंबर के पेज पर उपलब्ध है। So here Paul is basically speaking about marriage, divorce and unmarried people. और यहाँ पर जो पौलुस है वो विवाह के बारे में, तलाक के बारे में और अविवाहितों के बारे में बात कर रहा है। So in verse 10 he says to married people, now to the married I command, yet not I but the Lord. और देखिए 10वें वचन में वो विवाहित लोगों पर जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। So even though Paul is writing with authority, but he's writing it behind the instruction of the Lord himself. और देखिए पौलुस भले ही अधिकार के साथ में लिख रहा है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अधिकार के पीछे से इस बातों को लिख रहा है। Now look at verse 12. और 12वें वचन को देखें। Paul says the rest, that means to the rest means those who are not married. और पौल कह रहा है बाकी लोगों के लिए यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ है। He says, I, not the Lord. और वो कहता है मैं नहीं परंतु प्रभु कहता है। So in this case, the counsel is coming from whom? और इसके इस उस समय में इस उदाहरण Paul. का परामर्श किसकी ओर से आ रहा है? It's coming from Paul. और वो पौल की ओर से आ रहा It's है। coming from Paul himself and not directly from God. और ये पौलुस की ओर से है, सीधा परमेश्वर की ओर से नहीं। He's giving his advice based on his understanding and responsibility. और वो परामर्श जो है अपनी समझ और अपनी ओर से दे रहा है। Now look at verse 24. और 24वां वचन देखें। Here he's talking about virgins and unmarried people. और यहाँ पर वो कुंवारियों और अविवाहितों के बारे में बात कर रहा है। And he clearly says, I have no commandment from the Lord, but I give my advice. और यहाँ स्पष्ट कहता है परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं परंतु मैं अपना परामर्श दे रहा हूँ। So in all of these three verses, verse 10, verse 12 and verse 24, और यदि इन तीनों वचनों के अंदर अगर हम देखें 10 वचन में, 12 वचन और 24 वचन के अंदर में, the key point is that sometimes counsel comes from God. और यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि कई बार परामर्श परमेश्वर की ओर से आता है And sometimes it can come from men and women who are entrusted by God to advise others. और कई बार उन स्त्री पुरुषों के द्वारा परामर्श मिल सकता है जो परमेश्वर के द्वारा दूसरों को सलाह देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। So Paul is very clearly saying, I am giving you this command, or I'm telling you this. I've not received it from God. And he's saying he's doing this because God in his mercy has made him trustworthy. और देखिए पौलुस यहाँ पर उदाहरण रूप से कहता है कि मैं तुम्हें ये परामर्श दे रहा हूँ, ये आज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन किस रीति से कि परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे इस प्रकार भरोसेमंद बनाया है कि मैं कर सकूं। Which means God can entrust certain people with the responsibility to guide others and give counsel while not command them. और देखिए कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकता है, उन्हें ये कार्य सौंप सकता है कि वो परामर्श दे, आज्ञा दे। So while it's not a command, it has to be respected and considered carefully. और देखिए जब भी ये कोई आज्ञा नहीं है लेकिन फिर भी इसे हमें सावधानी के साथ में और आदर के साथ में व्यवहार करने की आवश्यकता है। Now, how should you receive godly counsel? और आप
ईश्वरीय परामर्श को कैसे प्राप्त करते हैं How should you receive godly counsel? और आपको कैसे ग्रहण करना है ईश्वरीय परामर्श को? With? Okay, when you receive a godly counsel from somebody, how do you receive it? What attitude do you have? और जब किसी व्यक्ति से आप ईश्वरीय परामर्श या सलाह प्राप्त करते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए? Yes, humility. You should be humble enough. और आपको नम्र होकर उसको ग्रहण करना चाहिए। Humility is very important. और नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। It's very humbling to receive counsel from parents, pastors, mentors, and spiritually mature people. और अपने आप को नम्रता के साथ में माता पिता, पासवान, अभिभावकों के द्वारा, आत्मिक परिपक्व लोगों के द्वारा जब हम प्राप्त करते हैं, नम्रता के साथ प्राप्त करें। And sometimes also, not sometimes, also receiving from your mother-in-law and your father-in-law. और हमेशा अपने सास ससुर का भी जब आप ईश्वरीय सलाह प्राप्त करें, आदर सम्मान के साथ में करें। Well, let's look at a strong example that is found in Exodus chapter 18. और 18वें अध्याय के अंदर निर्गमन के एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। Now we see that, Moses was sitting from morning to evening. What was he doing the whole day, Moses? और मूसा को हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, पूरे दिन क्या करता था वो? What was Moses doing? और मूसा क्या करता था सुबह से शाम तक? No, when he brought the people out of Egypt. और मिस्र से जब लोगों को बाहर ले आया, मरुभूमि में था, सुबह से शाम तक लोगों के मध्य में बैठ के वो क्या किया करता था? Counseling them. Sorry? I'm counseling them. Counseling them. He was all actually judging the cases that they were bringing. और वो लोग जो बातों को, मुद्दों को लेकर आते थे, उनका न्याय किया करता था। So he used to judge the Israelites, basically addressing the dispute that people had. और यदि कहा जाए तो लोगों के मध्य में जो वाद विवाद हुआ करते थे, उन्हें वो सुलझाने का काम किया करता था। Now when Moses' father-in-law Jethro had come to meet him, और देखिए मूसा का ससुर जो है यत्रो, जिसका नाम यत्रो था, वो मूसा से मिलने के लिए आता है। he sees Moses was sitting from morning till evening and so many cases he was dealing with. और वो देख रहा था कि मूसा सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है, कई सारे मुद्दों को निपटाता है। When he sees this, he knows that Moses is going to be burnt out soon. और वो मूसा को देखता और बोलता है, इसका तो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। So he says, why don't you choose some capable men और मूसा को उसके ससुर ने कहा, तू कुछ योग्य लोगों को क्यों नहीं चुन लेता and let them judge the simple cases, और वो के साधारण जो मुद्दे हैं उनका न्याय वो लोग करें, and the difficult ones and those they are not able to, they can bring it to you. और यदि कोई मुश्किल है, यदि वो न्याय ना कर पा रहे हो, तब वो उस बात को तेरे सामने लेकर आ जाए। Now what did Moses do? और मूसा ने क्या किया? Did he say, oh, my father-in-law, he's never been a leader, he will not understand? और वो उसने क्या ऐसा कहा कि अरे मेरा ससुर तो कभी अगुवाई में था ही नहीं, इसको क्या पता? He humbly accepted Jethro's advice and acted on it. और उसने नम्रता के साथ में अपने ससुर की बात को मानकर उसके अनुसार काम भी किया। So we learn that even leaders must be humble enough to receive counsel regardless of our positions or और achievements. देखिए हमें यहाँ पर इस बात को सीखने के लिए मिलता है कि एक अगुवे होने के नाते नम्रता के साथ में भले ही हमने कितना भी प्राप्त क्यों ना कर लिया हो, लेकिन जब हमें ईश्वरीय परामर्श मिलता है, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। Yes, Rohit, you had a question? Your hand is up. Rohit Das. यस मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, जब चर्च के सेवक या लीडर के ऊपर, जो कलीसिया के लोग उनके ऊपर विरोध की बात है या उनको कुछ ऐसा पास्टर की गलत डिसीजन ले लेता है या कुछ ऐसा हो जाता है या बाय मिस्टेक में कलीसिया के लोगों को समझने में मुश्किल होता है या जजमेंटल उन लोगों का थॉट होता है कलीसिया के लोग, उस टाइम में कैसे हैंडल करें मैम? Can you translate that, Pastor? Only last part I understood. The church people have become judgmental for pastors. Then what should be our reaction? आप बोल रहे हैं जब चर्च कलीसिया के लोगों पास्टर को जज करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही प्रश्न है क्या? यस, जब हमारे कलीसिया के लोग
हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारे कलीसिया के लोग Oh, so उंगली you उठाते are हैं a किसी को। pastor, आप pastor हो और कलीसिया के हाँ। लोग आपके ऊपर हाथ उठाते हैं. यस वही यस question है. So what do you do as a pastor when people in your congregation, lift your finger against you? I think it's important to see if, if there is some mistake on our part. और प्रश्न ये पूछा गया है कि कलीसिया के लोग अगर पासवान की ओर उंगली उठाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए। Yes, if you have done something wrong, it's a good time to correct yourself and, so that you can become a better person, a better leader, a better pastor. और यदि आपने कोई गलती कर दिया है तो अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। बेहतर समय होगा कि हम अपने आप को एक बेहतर पासवान, एक बेहतर अगुवा बना सकें। If they have misunderstood your actions and the way that you're doing things, then it's good to speak to them. और यदि उन लोगों ने गलत समझ लिया है कि आपने अगर कुछ बोला समझा कुछ और है, तब आपको उनसे बात करने की आवश्यकता है। So you can give them more clarity, ताकि आप और स्पष्टता से उन्हें समझा सकें, so that the misunderstanding is cleared. और ताकि जो गलतफहमी है वो सही हो जाए। And the third thing to do is, और तीसरी बात जो की जानी चाहिए, if it's nothing wrong that you are doing, you've tried to clear the misunderstanding, it's just people's attitude of gossiping and talking, you can't do anything about it. और आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत ही है कि वो कमी को निकाले, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। Then all you need to do is take it in prayer to God, और तब केवल इतना कर सकते हैं कि हम प्रार्थना में इस मुद्दे को लेकर जाएं। and God will fight your battle, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, because God is the one who judges and vindicates. और क्योंकि परमेश्वर ही है जो न्याय करता है। He will either remove those people from your congregation, और या तो परमेश्वर आपकी मंडली से उन लोगों को ही निकाल देगा, and there will be peace and things will just go on smoothly. और शांति होगी और चीजें जो है सामान्य रूप से चलने लगेंगी। So it's important to pray and ask the Holy Spirit to guide. और ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई की मांग करें। But here in this context where we're looking at how God can, through godly counsel, He can help us to know our plans and our purposes when people speak into our lives. और लेकिन हम इस संदर्भ में जब देख रहे हैं तो हम इस संदर्भ को देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के लोगों का परामर्श प्राप्त करते हैं तो उस परामर्श के द्वारा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की जो युक्ति है अपने जीवन के अंदर में हम पूरा किस प्रकार से कर पाएंगे। Now sometimes people can lead you into your divine destiny and plan and purpose. There are three types of counsels. और कई बार लोग आपकी परामर्श के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य में और परमेश्वर के दिए गए दर्शन में पूरा करने में सहायता करते हैं। उसमें 3 प्रकार की सलाह होती है। Counsel based on people's own knowledge and experience. और सबसे पहले परामर्श जो लोगों के अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर होता है। Second one is through the written word. और दूसरा परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। And thirdly through prophetic inspiration. और तीसरा है भविष्यवाणी की प्रेरणा के द्वारा। Now we need to understand that counsel is always intended to guide us according to God's plans for our lives. और हमेशा हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो परामर्श है वो परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के अंदर में पूरा करने के लिए उसके अनुसार अगुवाई करता है। Are you all able to understand what I'm saying? आप सभी समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Yes, no? हाँ ना? Okay. So God may use godly counsel to help us make decisions, avoid pitfalls, and to encourage obedience in our lives. और परमेश्वर सलाहों का इस्तेमाल करता है कि वो हमारी मदद करे कि हम निर्णयों को ले पाए, गड्ढों से बच पाए, अनाज्ञाकारिता से भी बच पाए। So we look at the first type of counsel based on person's own knowledge and experience. और सबसे पहला सलाह पहला बिंदु जो है कि मनुष्य लोगों के अनुभव
और व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सलाह देते हैं। Now, this can be very valuable, but we must be very careful about who we are asking for counsel. और ये बड़ी कीमती तो हो सकती है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आप किससे सलाह मांग रहे हैं या परामर्श मांग रहे हैं। Now, for example, you have a problem in your business, और उदाहरण के लिए आपके व्यापार में एक समस्या खड़ी हो गई है, and say you're having a problem with your business partner. और सोच लीजिए आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में आपको समस्या हो रही है। Now, who will you go for counsel to? और किसके पास सलाह लेने जाएंगे? Go to God, okay? I mean, we're talking about godly counsel. So, people, who will you go to? और लोग कौन से लोगों के पास में जाएंगे सलाह लेने के लिए? Pastor, ma'am. Pastor, okay? Some people who are doing business, not just some people, but people who are good in their business, long-lasting business, okay? और देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास सलाह लेने के लिए नहीं जाएंगे, वही The close friends, the well-wisher, ma'am, who has the business knowledge. Yes, who has a business knowledge? और Yes. जिनके पास व्यापार करने का ज्ञान होगा, उन्हीं के पास हम सलाह लेने जाएंगे व्यापार की। You won't go to a marriage counselor, right? और आप विवाह सलाहकार के पास में तो नहीं जाएंगे। If you go to a marriage counselor, what will a marriage counselor do? और अगर आप विवाह सलाहकार के पास में जाएंगे तो आपका क्या होगा? He'll give you biblical advice, he or she. और देखिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बाइबल से उठाकर आपको उदाहरण दे देंगी। Say, what God has put together, let no man asunder. जिसे परमेश्वर से जुड़ा है, कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। That's biblical advice, और वो बाइबल की सलाह है, but does not apply in this business context. लेकिन व्यापार के संदर्भ में वो काम नहीं करता है। So, this will be wrong counsel for the wrong context. और तब गलत संदर्भ के लिए गलत परामर्श हो जाएगा। So, you have to go to a businessman who's well established in his field. और आपको ऐसे व्यक्ति के पास में जाना होगा जो अपने क्षेत्र में प्रवीण हो, अच्छा हो व्यापार करने में। Now, you might say, okay, this businessman is not prophetic, he's not super spiritual. और आप हो सकता है कहेंगे कि ये जो व्यापारी है, ये तो ज्यादा आत्मिक भी नहीं है और ना ही कोई भविष्य सूचक दिखाई देता है। Thank you. He might not even have great faith. और शायद उसके पास में बड़ा विश्वास भी नहीं है इस व्यापारी के पास में। He might be an unbeliever as well, और हो सकता हो कि वो अविश्वासी हो, but that's okay. और वो ठीक है, लेकिन He might not be a believer, but he still has knowledge and experience in the field of business. और वो भले ही विश्वासी नहीं होगा, लेकिन व्यापार के क्षेत्र के अंदर में उसका व्यक्तिगत अनुभव भी है और उसे ज्ञान भी है। So you can learn from his और experience. आप उसके अनुभव से सीख सकते हैं। But there's a caution, if he tells you to do something wrong, और लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यदि आपसे वो कुछ गलत करने के लिए कहता है। for example, he'll say you can cheat your partner, or you can, manipulate him, or, rob him, all of those things, you don't do those things. और देखिए, यदि उदाहरण के लिए वो कहता है तुम अपने साथी को धोखा दे सकते हो, उसके प्रति आप विश्वास योग्य रह सकते हो, तुम उसके साथ धोखा कर सकते हो, तब ये सब आपको नहीं करना है। So take the advice that leads you towards righteousness and not towards और unrighteousness. आप ऐसी सलाहों को, परामर्श को ग्रहण करें जो आपको धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करे, न कि ऐसी सलाह को ले जो आपको अधार्मिकता में ले जाए। Let's look at another example. और एक और उदाहरण देखते हैं। If you are facing a financial problem, who will you go to? और यदि आपको पैसे की समस्याएं हो रही हैं, तो आप किसके पास सलाह लेने जाएंगे? Pastor. Many of you will run to the pastor, right? और आप में से बहुत सारे लोग जो है पासवान के पास ही दौड़ कर जाएंगे। If you go to the pastor, what will he ask you? और पासवान के पास जाएंगे तो पास्टर आपसे क्या कहेंगे? Did you pay your tithes? क्या तुमने दशवांश दिया? And he'll quote Malachi chapter 3 verse 9, और देखिए, वचन से कहेंगे, मलाकी 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, which speaks robbing God in tithes and offerings. He might say, and because of that you're having financial और problems. जो कि कहता है कि तुम परमेश्वर को लूटते हो दान और दशवांश के लिए, इसीलिए तुम लूट रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है। He'll say, are you giving God your tithes and offerings? You will say, yeah, sometimes I forget. और वो पूछेंगे क्या दशवांश दे रहे हो ईमानदारी से? आप कहेंगे कभी कभी दे देते हैं कुछ समय भूल जाती और हूँ. कभी कभी भूल जाते हैं। So then he'll say, that's why you're having financial और problems. वो कहेंगे कि यही तो कारण है
हैं परमेश्वर भी तुम्हें बार बार भूल जा रहा देने को। His perspective is biblical, but might not address your problem of your financial problem here. और देखिए उनका नजरिया बाइबल आधारित तो है, लेकिन फिर भी उनकी नजरिए से आपकी पैसे की दिक्कत की हल नहीं निकलेगा। So who would you go to when you have a financial problem? और जब आपको पैसे के क्षेत्र में समस्या होती है तो आप किसके पास जाएंगे? Sorry. Family members, okay? A financial advisor. Yes, a financial advisor, yes. और एक वित्तीय सलाहकार के पास में हम जाएंगे। Or you go to a chartered accountant, और या आप एक सीए के पास जाएं and they will give you practical guidance what to do, what not to do. और वो आपको व्यवहारिक सलाह देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। The problem with us believers is we go to the wrong people, take the wrong counsel, mess up our lives, and then we blame God. और देखिए हम विश्वासियों के साथ में एक समस्या है कि हम जो है गलत लोगों के पास में गलत सलाहों को लेने के लिए जाते हैं और अपने जीवन के अंदर में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां कर लेते हैं। So the lesson is simple: go to the right people and the right kind of contact. और पाठ बिल्कुल साफ है, हमें सही लोगों के पास में सही सलाह के लिए जाने की आवश्यकता है। The second kind of counsel is based on the written word of God. We already studied that. और दूसरी जो परामर्श है वो परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर में है, जो कि हमने पढ़ा था। The third one is prophetic inspiration. और तीसरा जो है भविष्य सूचक प्रेरणा के द्वारा। But when we receive prophetic inspiration, we need to test it with what? और जब हम किसी भविष्यवाणी सूचक सलाह को पाते हैं तब हमें किससे जांचने की आवश्यकता होती है? With the word of God, और yes. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now let me give you an example. और एक उदाहरण आपको देते हैं। Now David wanted to build a temple for God, yes or no? और दाऊद परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था। I know. हाँ या ना? And who does he tell this plan to? और किसको उसने ये योजना बताई? Yes, the prophet Nathan. और उसने नातान को ये बात बताई। And what did prophet Nathan say? और नातान ने क्या कहा? Initially, he says, "Okay, ma'am," and Yes. afterwards, he says, "God is not telling not to build. Your son will build." Yeah, he's super excited. In paraphrasing it, my own words, he say, "Okay, go on, David, come on, do a good job. You can build a temple for God." और नातान ने जब सुना तो उछल के कूदने लगा, दाऊद तू कर सकता है, तू बना लेगा, तू बना, चल आगे बढ़। Later, God revealed that David would, to prophet Nathan, that David would not build the temple, but his son Solomon would build it. और लेकिन थोड़ी देर के बाद में ही नातान आके बोलता है, दाऊद नहीं बनाएगा, लेकिन उसका बेटा परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा। So you see that prophetic counsel should always be tested with scripture. और आपने देखा कि हमेशा जो भविष्यवाणी के शब्द हैं उन्हें परमेश्वर के वचन से जांचने की आवश्यकता होती है। Here David did not have any scripture, but God himself spoke. और दाऊद के पास में कोई लिखित वचन तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने खुद उससे बात करी। Because sometimes a prophet can speak from their own understanding rather from a direct revelation from God. और कई बार भविष्यवक्ता जो है अपनी समझ से बातों को बोल देते हैं, उन्होंने परमेश्वर से प्रकाशन नहीं पाया होता है। So we have to test prophecies and counsels always with the word of God. और हमेशा हमें गवाहियों भविष्यवाणियों को परमेश्वर के वचन से जांचने की आवश्यकता है। Now Paul explains this principle in Romans chapter 14 verse 17. और पौलुस रोमियो 14 उसके 17 वचन के अंदर में इसके नियम को समझाता है। So how does this let's look at it and look at how it applies to counsel. और आइए हम देखें कि कैसे वो हमारे परामर्श में कार्यरत होता है। Can somebody read that please? और कोई भी पढ़ सकते हैं। For the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but righteousness and grace and joy in the Holy Spirit. Amen. Thank you. So it says the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, और वहां लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, but it's but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और वो धार्मिकता, शांति और पवित्र आनंद में पवित्र आत्मा में आनंद है। So how does this apply to counsel? और ये परामर्श में कैसे जुड़ता है? How do you know that the counsel that you receive from somebody is from God? और आप कैसे इस बात को समझेंगे कि यदि किसी की
की ओर से आपको परामर्श मिल रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। Three things. It produces righteousness, और तीन बातें, सबसे पहले वो धार्मिकता उत्पन्न करता है, which means does it align with God's standards? Is it right? Is it holy? और इसका मतलब है वो परमेश्वर के मानक से मेल खाता है कि ये पवित्र है, सही है। Second one is that it brings peace to your heart. और दूसरा वो आपके हृदय के अंदर में शांति लेकर आता है। Peace is a confirmation of the Holy Spirit that it is indeed God's will. और शांति इस बात को पक्का करती है कि ये बात जो है वो परमेश्वर की ओर से ही है। And the third one is joy. और तीसरा आनंद है। Joy is another confirmation from the Spirit that you are walking in God's path. आनंद एक और दृढ़ता है कि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। But if the counsel does not produce righteousness, peace, and joy, it's not from God's kingdom. और यदि कोई परामर्श जो है धार्मिकता, शांति, आनंद उत्पन्न नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के राज्य से नहीं है। Are you all able to understand? आप समझ रहे हैं? It's very, very important when you make major decisions in life, when people, pastors, prophets, people speak over your life, they say, hey, marry this person, do this, get into this job, this vocation, that, if it does not produce righteousness, peace, and joy, it's not from God's kingdom. और देखिए, आप अपने जीवन के अंदर में जब बहुत अहम निर्णयों को लेते हैं तब बड़ी सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता है। कई लोग आकर कहेंगे इससे शादी कर लो, ये ब्याह कर लो, वो व्यापार कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। यदि कोई भी सलाह आपके जीवन के अंदर में धार्मिकता, शांति और आनंद उत्पन्न नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Amen. So that is why we must surround ourselves with godly people who can speak into our lives. और इसीलिए हमेशा हमें ऐसे परमेश्वर के भक्त लोगों के साथ घिरा रहना चाहिए जो परमेश्वर की सलाह हमारे जीवन के अंदर में देते रहें। Godly counsel can guide us into God's plans and purposes. और परमेश्वर के परामर्श परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों को अगुवाई करते हैं। But it requires humility to receive it and discernment to know if it is from God. उसे प्राप्त करने के लिए नम्रता और इस बात को जानने के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। Now let's move on to the 8th guidepost. और आइए हम 8वें बिंदु पर चलते हैं। What is the 8th guidepost? और 8वां बिंदु क्या है? Recognize the times and seasons. और समयों और ऋतुओं को पहचानना। Like I said, in the last few classes, God works in times and seasons, and we need to understand God's time season that He has for us. और देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात के बारे में बात किया था कि परमेश्वर जो है समय ऋतुओं में कार्य करता है और हमें परमेश्वर के ऋतु और समझने की आवश्यकता है। So God does not work arbitrarily, but God does everything with a specific time, season, and plan in mind. और परमेश्वर यूं ही कैसे काम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर जो है हर एक चीज को विशेष समय, विशेष ऋतु और अपने मन में योजना के साथ में करता है। And we need to understand God's time and season, so we understand what is His plan for our lives. और हमें परमेश्वर के समय ऋतु को समझने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की उद्देश्य और योजना को अपने जीवन के लिए समझ सकें। Now let's look at some biblical examples of God's timetable. और होके अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जो परमेश्वर के समय श्रेणी के उदाहरण हैं। So the first one is given on top of page number 25. और देखिए, हिंदी में देखेंगे तो पेज नंबर 26 में जो है पहला उदाहरण दिया गया है। Genesis chapter 3 verse 15. और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन। It says, can somebody read Genesis? Online student, can somebody read Genesis 3:15 for us, please? और 3 अध्याय 15 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. Genesis 3. Yes, go ahead and read Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Amen. Thank you. Amen. So here, who is the seed of the woman? और यहाँ स्त्री का बीज कौन है? Jesus Christ, और yes. यीशु मसीह है। And what will Jesus Christ do? और यीशु मसीह क्या करेंगे? He will crush the head, ma'am.
He will crush the head of the serpent. Who's the serpent? Who's the serpent? और सांप का Satan. देखिए सर्प कौन है? Satan. Where did Jesus crush the head of the serpent? और यीशु ने In कहा cross, कि ma'am. सर्प को कुचला On the cross. Basically, head. The Hebrew word means someone who's a leader or authority. और देखिए सर का मतलब ये है इब्रानी भाषा में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मुखिया है। So how long did it take God to fulfill this promise? और परमेश्वर को कितना समय लगा इस वायदे को पूरा करने के लिए? 4,000 years. 4000 साल लगे। Why did it take 4,000 और years? क्यों 4000 साल लगे? Look at Galatians chapter 4 verse 4 on top of page number 25. और गलाती 4:4 को देखिए। What does it say there? और गलाती 4:4 में क्या लिखा हुआ है? Look at your textbook, page number 25, top of page number 25 in italics. नीचे देखिए हिंदी में। In the fullness of time, God sent his son. परमेश्वर ने समय की पूर्णता में अपने पुत्र को भेजा। That means God revealed this promise 4,000 years back. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने 4000 पहले अपने वायदे को दिया। But in the fullness of time, or the God appointed time, or the kairos time, God brought it into fulfillment. और लेकिन परमेश्वर के नित्य समय काइरोस समय के अंदर में परमेश्वर ने इस वचन को पूरा भी किया। Now we need to understand that God works in chronos time and kairos time. और हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है काइरोस और क्रोनोस समय के अंदर में कार्य करता है। Chronos time is chronological time. और क्रोनोस जो समय है वो It's history unfolding. ऐतिहासिक समय के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। It's a time where God is preparing us to bring us into the fulfillment of his promise or और plan. एक ऐसा समय होता है जहां परमेश्वर अपने इतिहास को खोलकर उसे पूर्ण करने की तैयारी करता है। And kairos time is the God appointed time, the opportune time where his plan is birthed and released. और दूसरा काइरोस मतलब परमेश्वर का नियुक्त समय जहां परमेश्वर मौकों को बनाता है, नियुक्त करता है और अपने कार्यों को और जन्म देता है। So God took 4,000 years through history to prepare all of history at the right moment to bring in Jesus. और परमेश्वर ने 4000 वर्ष का पूरा समय लिया कि वो अपनी उद्देश्य को जन्म दे सके और समय पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा भी किया। Let's look at another example. और एक और उदाहरण हम देखेंगे। Now God told Abraham that his descendants will be as slaves in a foreign land for how many years? और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे 400 years, ma'am. वंशज जो है दूसरे देश में गुलाम होंगे। कितने साल के लिए गुलाम होंगे? 400 years. और 400 वर्ष की गुलामी में रहेंगे। And we see that the Israelites were slaves in Egypt for 400 years. और हम देखते हैं कि इजराइली लोग मिस्र में 400 साल गुलामी में रहे। And at the appointed time, God raised up और Moses. नित्य समय में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। But it took 440 years for God to finally bring them out of Egypt. और लेकिन 440 साल लगे परमेश्वर को मिस्र से लोगों को निकालने में। Why was a delay of 40 years? और 40 साल की क्यों देरी लगी? Moses' disobedience, और yes. मूसा की अनाज्ञाकारिता की वजह से। So our disobedience, our wrong choices delays God's plans. और हमारी अनाज्ञाकारिता हमारे गलत चुनाव परमेश्वर के कार्य में देरी डालते हैं। It wasn't God delaying his plan, but it was man's choice that delayed his plan. ये परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा करने में देरी नहीं किया, लेकिन मनुष्य के चुनाव के कारण परमेश्वर के कार्य को पूरा होने में देरी हुई। Now we know that the Israelites were taken as captives, right? In Assyria and Babylon. और हम जानते हैं कि इजराइल जो है बेबीलोन देश में गुलाम होकर ले जाए गए। And God declared their captivity will be how many years? और परमेश्वर ने घोषणा की ये गुलामी कितने साल की होगी? 70 years, ma'am. 70 years, yes. और 70 वर्ष की गुलामी में होंगे। And we see at the end of the 70 years, in the Kairos moment, God raised up King Cyrus. और हम जानते हैं 70 वर्ष के अंत में परमेश्वर के नित्य समय में परमेश्वर ने एक राजा साइरस को खड़ा किया। And God put in his heart to send back the Jews to Jerusalem to rebuild the city. और परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि यहूदियों को यरूशलेम भेजकर उनके नगर को
दोबारा से निर्माण किया जाए। So we see that 4,000 years, 440 years, 70 years are all Chronos time, and at the Kairos moment, God fulfills His promise. और हम देखते हैं 4,440 साल और 70 साल परमेश्वर का नित्य समय, जहां परमेश्वर अपने किए गए वायदे को पूरा करता है। So we'll stop here. मिलते हैं break के बाद, and we'll meet after the break. Thank you.